Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the Department of Transport, Delhi Government, I welcome you all to this brief but momentous occasion when the fruition of an ambitious project of shifting all its transport services in the capital online is coming to a close. In the last 6 years, a dramatic change has occurred in online delivery of transport services. It began with the facility to submit online the applications for the driving license, etc., which was a huge success. The Delhi Transport Department was able to clear 64% of the 77,000 online applications it received for services related to driver's licenses and vehicle registration certificates in February and March this year. And the Delhi government then offered doorstep delivery of services to all by dialing 1076. You can now avail around 70 transport services sitting in the comfort of your home by clicking a button. And today, with the launch of its services, the Delhi Transport Department covers 90% of all services across RTOs in the state. The aim was to decongest all the 13 regional transport offices in the city, allowing the common people to get important documents, including renewal of driving licenses or transfer of vehicle ownership, etc., from the comfort of their homes. The transformation to faceless services or online services was enabled through technology and regulating change, and it has made a huge difference. And today, the Delhi Transport Department authentication processes involve integrating with the Aadhaar, and this data is available online, and the addition of the e-signing facility has made it much easier. All these efforts have resulted in transparency, ease of service, as well as made it foolproof and safe. The services have been made completely online in the first phase, then we've moved to the second phase, and today you're aware that in the last 6 months, the Delhi Transport Department has been making intensive tests of the platforms to enable a smooth transition. And during the pilot phase, several services have already been rolled out. So in addition to this, the Delhi government has been modernizing its bus fleet, incorporating technology-supported solution. It also supports sustainable transport by using only CNG and other clean fuels. And recently, the department launched an electric vehicle policy 2020, as well as adapted other schemes like the odd-even schemes to curb pollution. It's also worth mentioning that in the first and second lockdowns, Delhi provided 5,000 rupees assistance to over 1.5 lakh auto and taxi drivers. Equity, accessibility, and affordability in transport, free travel for women through the Pink Pass scheme. Another first on such a large scale, as well as buses for the differently abled. So I've just mentioned some of the main things that have happened with the modernization facility. So it's very clear that under the leadership of the Chief Minister, who we have with us, Mr. Arvind Kejriwal, together with the Minister Transport, Mr. Kailash Gehlot, the Department of Transport has planned this as the biggest reform package. Trials and testing of the software has been going on for several months, as I mentioned to you, and the goal is to shift all transport services online. We'll share with you details very soon. Ladies and gentlemen, we'd like to welcome in our midst the Honorable Chief Minister. I'd like to request Mr. Ashish Kundra, the Principal Secretary, come Commissioner Transport, to please welcome him with flowers. We'd also like to welcome the Honorable Minister for Transport, Mr. Kailash Gehlot. May I request Mr. S.B. Deepak Kumar, the Special Commissioner, to welcome the Chief Secretary, Mr. Dev, and Mr. K.K. Dahiya, Special Commissioner, to please welcome Mr. Verma, Ms. Verma. As I mentioned earlier, the Delhi government came up with a plan to make nearly 70 essential transport services completely online in 2 phases. What really comes to your mind when you think about the transport office, the regional transport office, is
immediately you think of a long queue, you think of a crowded public building which are filled with people frantically moving around from counter to counter. You've got long queues, the smell of dusty files, and of course the sound of the clicking computer keyboards. To radically change this scenario and make it easy for citizens and face the many challenges that were there to come around this, the Delhi government evolved a plan to go faceless, a huge step in digitalization and citizen convenience. So what that means is that you no longer have to stand in long queues or waste a whole day to get your work done or visit the RTOs repeatedly. So I'm sure that you're all excited to know more about this, and I'd like to invite the Principal Secretary and the Commissioner of Transport, Mr. Ashish Kundra, to please share with us, in brief, an overview of the first of its kind project, Faceless, by the Department of Transport, Delhi government. Mr. Kundra. Good morning, sir. Welcome in our midst. सिक्योरिटी कर्मियों से मैं थोड़ा दरख्वास्त करता हूँ थोड़ा साइड हो जाए, वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा. So I'll just run through a presentation, brief presentation which gives an overview of what we have done. Sir, just to give a scale, first of all, sir, the Transport Department is a department which touches the lives of everyone. Nearly 30 lakh transactions happen annually. 3 million transactions we are talking about, sir. 11 lakh people avail driving license related services. 18 lakh people, nearly 19 lakh people get registration certificates. All put together, sir, 2019, this was the number. So the journey of Faceless, we have to kind of figure out from 2015. 2015 में सर लंबी कतारें लगती थी दफ्तरों में. उसके बाद सबसे पहले जो है डिजिटल पेमेंट की एक प्रक्रिया शुरू हुई. उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन होने लगी, लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते थे. 2017 में शुरू हुआ. फरवरी 2018 से जो मैनुअल ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक थे वो तमाम ट्रैक ऑटोमेटेड हो गए. 2018 में सितंबर में 1076 की सर्विस स्टार्ट हुई सर, और उसके बाद फरवरी में इस साल हमने जो पायलट स्टार्ट किया फेसलेस सर्विसेज का, और आज 33 सर्विसेज ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड परमिट्स, वी आर मेकिंग इट कंप्लीटली फेसलेस सर. These are the broad boxes, sir, in which we are delivering services which are faceless. What do we mean by faceless, sir? It's important for everybody to understand. People think it's online application, but there's a major difference. One is we apply online. The RTO office is a virtual RTO office, not a real physical office. Secondly, fee payment is online. Authentication is Aadhaar based. So we are not only authenticating the data from Aadhaar, but we are fetching the demographic data and photo from Aadhaar database. E-sign has been enabled through CDAC with Aadhaar, and whatever he has or she has applied for, they will get either by post or a digital copy of that, for which an SMS goes and a link goes and the people are able to download it, sir. Why faceless? Somebody may ask, sir. So basically it is for ease of service delivery, for transparency, for efficiency, for cutting red tape and corruption, which is endemic in public service delivery, sir. So the modes of digital service delivery, the digital version of RC or driving license or so on and so forth, of permit or fitness, as I said, we send an SMS link and somebody can download it, a PDF. Second is on DigiLocker, it is available, sir. And thirdly, there is an app developed by NIC, which is M-Parivahan, on which these are available digitally, sir. And these, by the way, sir, are recognized equally like the card documents by traffic police and other enforcement authorities. This is a menu of services, sir, which are going faceless now today. Starting from learner license, international driving permit, duplicate driving license, changing address, replacement of license, conductor licenses, public service vehicle badge, so on and so forth. Transfer of ownership, people buy and sell vehicles, duplicate RC, change of address, issue of NOC, hypothecation termination, so on and so forth, sir. Issue of NOC, fitness, permits, all that, sir, is now covered in faceless services.
So the experience so far has been very reassuring, and 3.42 lakh transactions have been done in the pilot testing phase over a 5-month period. And during the period of pandemic, I think it was, we were in a way fortunate that we had this service going, and contactless services were provided to people, sir. And these services, 33, are covering roughly 95% of the total applications which come to our offices. Now, on e-learner license, sir, this is not what we had done pilot testing for. We have started just a couple of days ago, but there we have a paradigm shift, sir. First, learner license people can get from their home. That means they apply online, their data is fetched from Aadhaar, photo comes from Aadhaar, and on the camera in the computer, it matches with that photo using an artificial intelligence-based photo face recognition tool. And then he or she takes a test, not only of the learner license parameters, but also a color blindness test. And then immediately after that, he gets learner license. So this is a major shift which has happened, and more than 400 e-learner licenses in the last couple of days we have been able to issue on this mode. And more than 4 lakh people, sir, will benefit on this front annually in Delhi, sir. With ICICI Bank, sir, we have partnered for termination of hypothecation. लोग सर कर्जा लेते हैं गाड़ी लेने के लिए, उसकी किस्तें भरते हैं, उसके बाद जब किस्तें ख़त्म हो जाती हैं तो उसकी क्लियरेंस के लिए वो बैंक के चक्कर काटते रहते हैं, या काट भी लिए उसके बाद यहाँ क्लियर कराने के लिए जब गाड़ी का ट्रांसफ़र कराना है तो हमारे दफ्तरों के चक्कर काटते हैं. So ICICI Bank actually has partnered with us through an API-based integration, and now hypothecation termination on full repayment of loan will be automatic, sir. The data to be noted is 32.5 lakh vehicles are under hypothecation. I'm sure seeing this example, other banks, HDFC, SBI, etc., will also come on board, sir. So Delhi, sir, in this parameter and on this definition of faceless, is the first state in the country. These are the parameters of online submission, digital payment, e-sign, and facial recognition, sir. We have also developed some mandates for our people, sir, that application online तो आ रहे हैं, लेकिन उसका निपटारा कैसे होगा. तो 7 दिन का टाइम दिया गया है सर, जो हमारे MLOs हैं कि उसमें उनको उसका निपटारा करना होगा. उसके बाद it gets escalated to the level of deputy commissioner, and then we have also established a central control room in the transport department headquarters, which is tracking the Vahan and Sarthi database, and there are dashboards which have been made for senior management to see, sir. Grievance redressal, sir, मान लीजिए दिक्कत आ गई, मेरा पेमेंट थ्रू नहीं हो रही, OTP नहीं आ रहा, all kinds of things happen on digital, sir. So there is a website on which you can log a complaint, dial 1076, and we have also created a WhatsApp chatbot, sir. This is the number 8588820000. It is fully functional, sir. It is integrated at the back end with Vahan and Sarthi, and whatever grievance is logged, it goes into the application number of that particular applicant, sir. Sir, for the first time, we have created 3 zones of deputy commissioner. So there is a decentralized oversight of faceless services, east, south and west में 3 officers को सर पोस्ट किया गया है जो सारी चीज़ को एक oversight रखेंगे सर. So now, what is the role of RTO offices? I mean, somebody can ask that, what will they do actually? I mean, if not this. So basically, sir, we are trying to encourage them to become facilitation counters, number 1. Second is, sir, that a greater focus on road safety. So they have been empowered to look at enforcement issues, or issues of road safety, of infrastructure of transport, and of facilitating people in getting these services. So that is the changed role, sir. Just a brief video of the journey of transformation, sir. I think the minister, sound नहीं आ रहा. Sound. करें? Is there any other way to?
this other audio cable. खींचो दूसरा ऑडियो केबल लगा हुआ फटाफट वो सफेद वाला जो था आपका सफेद वाला जो था आपका सफेद वाला हम ताला लगा रहे हैं, हम आरटीओ पे ताला नहीं लगा रहे हैं, हम भ्रष्टाचार और घूसखोरी पे ताला लगा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें जो हमारे ऑफिस में लगा करती थी उनको ख़त्म कर दिया। आपको कोई छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई नौकरी कर रहा है उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी हैं आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, कंप्यूटर की सुविधा होनी चाहिए और आपने हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो साइट है उस पर जाना है। वो सर्विसेज पे जो चीज़ें जैसे स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है वो जाना है। आपके आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा और उसके द्वारा ही आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। सरकार आपके घर जा रही है आपको सर्विस देने के लिए, आपको सरकार के पास आने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर हम इसको इस तरीके से कहें कि हर घर में आज के दिन सरकारी दफ्तर है, आप अपने घर बैठ के वर्क एट होम बिना किसी परेशानी के, किसी आपको लाइन में नहीं लगना, किसी अधिकारी से नहीं मिलना और किसी और चीज़ों में टाइम ख़राब नहीं करना। 19 फरवरी को जो हमने जो ये ट्रायल स्टार्ट किया और आज लगभग 5 महीने से ज़्यादा पूरा हो गया, तो 5 महीने के अच्छे ट्रायल के बाद, अच्छी टेस्टिंग के बाद हम इसको ये पब्लिकली लॉन्च कर रहे हैं। 3 लाख सर्विसेज हम रिसीव कर चुके हैं और आपको ये खुशी होगी जानकर कि 80% से ज़्यादा हमारा सक्सेस रेट है। तो अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा जो 1076 की जो सेवाएं हैं जहां भी हैं आप उसको ले सकते हैं। अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट लेके आपका पूरा फॉर्म फिलअप और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होने वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा आपके लिए। जब पहला लॉकडाउन हुआ और उसमें हमने 1.5 लाख ऑटो ड्राइवर्स को, जो पैरा ट्रांजिट व्हीकल के ड्राइवर्स हैं, उनको घर बैठे हमने 5-5 हज़ार रुपये का, क्योंकि CM साहब का ये था कि भाई अब लॉकडाउन चल रहा है तो ये गरीब लोग हैं, इनको कष्ट ना हो, तो हमने 1.5 लाख लोगों को 5,000 रुपये हमने उनको घर बैठे, हमने उनको कहीं नहीं बुलाया, पूरा सॉफ्टवेयर बनाया, सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने की, उनकी जो स्क्रूटनी थी वो हमने ऑनलाइन की। तो वहाँ से हमारा फिर ये हमें कॉन्फिडेंस मिला कि अगर हम ये चीज़ कर सकते हैं तो ट्रांसपोर्ट की जितनी भी सर्विसेज हैं हम उनको फेसलेस कर सकते हैं, कंप्लीटली ऑनलाइन कर सकते हैं। हमने वादा नहीं किया है सिर्फ, हमने ये करके दिखाया है कि किस प्रकार से जो एक सपना था उसको हकीकत में कैसे हमने उसको बदला है। So these are some of the images of what our offices used to look like before we started this faceless. Next. And post faceless, sir, these are empty offices. These are real images which we have taken, sir. Next. बिजनेस है वो एक्सपोर्ट का बिजनेस है। मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, किसी ने मुझे बताया दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ किया है अपने आरटीओ में। मैंने फिर चेक किया, फेसलेस सर्विसेज का मुझे पता चल गया दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो सीधा मैंने अप्लाई कर दिया। वेरी वेरी वेल डन, आई वाज सो रिलीव्ड एंड एवरीथिंग वाज सो क्विकली डन। 20 मिनट में मेरा सब काम खत्म हो गया। 1076 में अपने मोबाइल में टेलीफोन कर दीजिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बंदे उसके घर में आ जाए। आई विल गिव देम फुल मार्क्स। दिल्ली गवर्नमेंट जैसे आपने किया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। I think, sir, that's pretty much it, sir. I would like to thank our partners, NIC, DG NIC is here, ICICI Bank, and most of all, sir, I think the team transport, the MLOs, who have not only risen to the occasion, but also had a major change in mindset and approach, sir. That is a big salute to them. To India Post, which is our partner for delivering these services, and I'm grateful to everybody, sir. Thank you, sir. I think they deserve a bigger round of applause, ladies and gentlemen.
Thank you very much. May I now request the Chief Secretary, Mr. Vijay Kumar Dev, to please say a few words. Honorable Chief Minister of Delhi, Honorable Minister of Transport, Commissioner Transport, Mr. Ashish Kundra, DG NIC, who is present here today, Special Secretary, Mr. S.B. Deepak Kumar, Mr. Daya, all the stakeholders, ICICI, and all the team members of Transport Department. At the outset, let me convey my heartiest compliments to the Transport Department for completing this long and arduous journey from long queues to no queues. And I think this milestone which has been reached today of faceless delivery of services is a very, very important milestone because it is an harbinger of the digital delivery of services which is going to happen in the entire country after seeing this example of Delhi. In fact, I say that in Delhi, the digital delivery of services is one of the most important thrust areas of governance in Delhi. And across departments, we have undertaken a very, very intensive drive so as to find out what are the rules, regulations, orders which result in problems for the citizens, which result in compliance burden on the citizens, which result in huge transaction cost for the citizens. And you would be delighted to know that across departments, under the program of ease of living for the citizens, a subset of which is ease of doing business. So this ease of living encompasses both government to business services and government to citizen services. More than 596 such transactions have been identified across departments, which we feel have to be removed across departments. So these are intensive reforms, and I'm very happy to say that across departments, all these transaction cost related obstacles which were there, except some of the reforms which were relating to labor departments and which are now part of the new labor code which is being launched by Government of India. 110 services belong to that. So as soon as the Government of India finalizes the labor code, those 110 services will also get the delivery of that will be completely online. 596 services across departments have been made compliance burden free. So huge work is being done across departments, whether it is revenue department or labor department or transport department. And transport department has come out as one of the largest reformers. So I take this opportunity to compliment the team transport because all services now in transport department are faceless. I think this is a huge achievement deserving a big round of applause. We at the government level continue to give all support to all departments which undertake systemic reforms because the touchstone and the barometer of the efficacy of the delivery of services is whether those services can be delivered to the citizens in a contactless manner, in a faceless manner, without having to go through arduous transaction costs, without having to go through middlemen. And I think this step which has been taken by the Transport Department today is an outstanding step in that direction. So my heartiest compliments. I would also like to take this opportunity to compliment the NIC, whose DG is here today, for not only in this Transport Department's initiative, but in all our initiatives across departments. NIC has been our very, very valued partner, and we are receiving complete cooperation from NIC in that regard. ICICI also, as has been told, has become a partner with us in this particular event which is being organized today. So my compliments to all of you.
And we give this assurance to the citizens of Delhi that we are committed to ensure that across departments, we give them services in a faceless manner. Thank you very much, Jai Hind. Thank you very much, Mr. Dev. I'd like to now request the Honourable Minister for Transport, Delhi Government, Mr. Kailash Gehlot, to please share his thoughts with us. चेष्टा यहाँ पर है, हाँ आप आइए. I would like to inform Honorable CM that जो अभी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने ई लर्निंग के बारे में जो सब पूरा प्रोसेस बताया और ये भी बताया कि देश में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए फेशियल रिकग्निशन, सर घर बैठ के आप जब ई लर्निंग लाइसेंस आप जब बना रहे हैं और उसमें अगर ये नहीं पता कि वो जो टेस्ट दे रहा है एप्लीकेंट वो कौन है, तो हम NIC के साथ बार बार हमने ये कहा कि जब तक वी आर नॉट श्योर कि एप्लीकेंट कौन है हम इसको लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि सर बिना ये फेशियल रिकग्निशन के फीचर के बिना तो हम 3 महीने पहले भी सर लॉन्च कर देते हैं. सो यू वुड बी हैप्पी टू नो सर, चेस्टा इज़ द फर्स्ट सक्सेसफुल applicant who completed in the country. So I just invited her and I thought if she can share her experience, because मैं बड़ा सर खुद I was very curious कि जिसने पहली बार जिसने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं कि वो घर बैठ के भी अगर वो लर्निंग लाइसेंस बना सकती है उसकी फ़ोटो मैच करते हुए, तो आई रिक्वेस्ट चेस्टर टू से a few words. Thank you. I would like to thank my transport department because this process so easy, and in just instead of standing in a long queues, we just have to do not have to upload our documents that we do earlier, and just on the click of one we can download the learner license. So I would like to thank our transport department for making this process and making this service available to us, to general public. I would like to thank the transport department. Thank you. मंच पर आसीन ऑनरेबल CM, चीफ सेक्रेटरी विजय देव जी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा जी, स्पेशल कमिश्नर दीपक मिस्टर दहिया, DG NIC मिसेस वर्मा, और यहाँ पर आए हुए सभी मीडिया बंधु सभी को नमस्कार. सर ये कहना गलत नहीं होगा कि आज हम सभी के लिए, दिल्ली वासियों के लिए और मेरे ख्याल से सभी एवरी पर्सन हु इज़ लिविंग इन दिल्ली, मेरे ख्याल से बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिक दिन है, क्योंकि सर आज हम जो दिल्ली में कर रहे हैं वो आने वाले कल में आई एम 100% श्योर इट विल बी रिपीटेड, इट विल बी फॉलोड इन द एंटायर कंट्री. अलग अलग जो राज्य हैं, ये आज हम जो किया है सर, ये आने वाले कल में सभी राज्यों में सर इम्प्लीमेंट होगा. सर अक्सर आपसे जब भी चर्चा हुआ करती थी गवर्नेंस, व्हाट इज गवर्नेंस, तो सर आप ऑनरेबल CM आप सब बिल्कुल शॉर्ट में एक ही चीज कहा करते थे, अभी भी कहते हैं सर, कि हम ऑफिस सर कितने अच्छे बना लें, कितनी अच्छी बिल्डिंग हम बना लें, लेकिन अच्छी गवर्नेंस हम उसी को कह सकते हैं जब सरकार के पास किसी भी व्यक्ति को ना आना पड़े, व्यक्ति के पास सर वो सरकार जाए, एंड दैट इज सर व्हाट गुड गवर्नेंस इज. और उसका एग्जाम्पल सर हमने दिल्ली ने आपके नेतृत्व में पहले भी दिया है सर, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक है, चाहे सर फ्री पानी है, फ्री बिजली है, चाहे 200 यूनिट सर फ्री बिजली है, चाहे फ्री ट्रैवल है. तो आपके नेतृत्व में सर जो हमने पहले भी दिल्ली ने करके दिखाया, पहले भी एग्जाम्पल सेट किया, वो सर आज हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हमने बिल्कुल असली जो एग्जाम्पल होता है सर वो करके दिखाया. वादे सर अनेक पार्टियां, अनेक सरकारें करती हैं, बट सर व्हाट वी हैव डन इन दिल्ली इज एक्चुअली हिस्टोरिक.
आई थिंक सर कमिश्नर ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन्ड ब्यूटिफुली, और उसमें मैं ज़्यादा एलेबरेट नहीं करूँगा, लेकिन सर इतना लंबा ट्रायल मेरे ख्याल से आई एम 100% श्योर कि किसी भी स्टेट या किसी कंट्री ने नहीं किया होगा। बिकॉज सर वी वांटेड टू बी श्योर कि अगर दिल्लीइट्स को, अगर दिल्ली वासियों को हम अगर कोई सर्विस दें तो वो उनकी कन्वीनियंस के लिए, उनकी सुविधा के लिए हो, उनकी परेशानियां बढ़ाने के लिए ना हो। और सर 19 फरवरी से जो हमने ट्रायल स्टार्ट किया, वी हैड कम अक्रॉस मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई सर, लेकिन एनआईसी के एक्टिव सपोर्ट के साथ हमने सारी वो प्रॉब्लम्स दूर की। पूरा ये जो फेसलेस सर्विसेज, जितनी भी सर 33 सर्विसेज हैं ट्रांसपोर्ट की, एंड दे कैरी द बल्क सर। लगभग 95% से ज़्यादा जो हमारी डेली सर्विस रिक्वेस्ट आती हैं वो सारी इन 33 सर्विस में सर वो इंक्लूड होती हैं। सर मोर देन 3 लाख सर्विस रिक्वेस्ट हमने हैंडल की हैं पिछले 5 महीने में। और सर आपको खुशी होगी जान के, जितने भी यहाँ उपस्थित हैं मीडिया के बंधु, उनके द्वारा सभी दिल्ली वासी सर खुश होंगे जान के कि सर 3 लाख से ज़्यादा, अगर 2 दिन पहले का सर अगर हम पकड़े तो 3,61,000 से ज़्यादा सर सर्विस रिक्वेस्ट हमने एक्सेप्ट की, उनको प्रोसेस किया। और सर यू विल बी हैप्पी टू नो कि हमारा सर रिजेक्शन रेट 1% से कम है सर। सो दैट इज़ रियल जो हम फेसलेस कहते हैं। सर आप एक सवाल मेरे से पूछ सकते हैं कि भाई रिजेक्शन रेट सर 1% है और हमारा सक्सेस रेट सर 80% से ज़्यादा है, तो बीच में जो सर 19% है वो कहाँ गया? तो सर जो 19% जो पेंडिंग है सर, दोज आर इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विच हैव बीन फिल्ड, विच हैव पुट ऑन होल्ड, एंड वी आर गेटिंग बैक टू द एप्लीकेंट कि भाई आपने अपने डॉक्यूमेंट में ये चीज़ नहीं किया, आपने अपनी जो पोस्टल रिसीट है उसके 20 रुपये सर आपने जमा नहीं किया। सो दोज एप्लीकेशंस आर नॉट बीइंग रिजेक्टेड, वो हमने होल्ड की है सर। जैसे फिजिकल रूप में भी अगर आप कोई ऑफिस में सर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वहाँ पर सर अफसर कहता है कि ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है। एग्जैक्टली सर वी हैव रेप्लिकेटेड द एंटायर प्रोसेस इन द वर्चुअल ऑफिस कि अगर किसी की एप्लीकेशन सर इनसफिशिएंट है और एप्लीकेंट को नहीं पता है, सो देयर बाय सर मैसेज वुड गो थ्रू द सॉफ्टवेयर कि आपकी इसके कारण ये एप्लीकेशन सर होल्ड की गई है। सर आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि जो ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल का जो प्रोसेस है सर, हम जब गाड़ी के सर बारे में, रिलेटेड व्हीकल के बारे में जब सर्विस की बात करते हैं तो मैक्सिमम सर्विस रिक्वेस्ट सर जो ट्रांसफ़र अगर कोई गाड़ी बेचता है या ख़रीदता है उसमें से आती हैं। मेरे ख्याल से सर अगेन सर दिल्ली है सर्टेन एग्जाम्पल, वी आर शोइंग द पाथ टू अदर स्टेट्स कि कैसे एक जो एप्लीकेंट है उसको ऑफिस आने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये सर हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बट आई थिंक सर इट इज़ एब्सोल्युटली अ टीम वर्क। सबसे बड़ा जो चैलेंज हुआ करता था सर कि उसका जो गाड़ी बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है उसके हम सिग्नेचर कैसे मैच करें सर। और सर मैं आपसे शेयर करूंगा कि जब 4 साल पहले सर आपने मौका दिया दिल्ली की जनता सेवा करने का, तो मेरे पास अनेक रिक्वेस्ट आती थी कि जी हमारी ट्रांसफ़र, हमने गाड़ी बेच दी है, गाड़ी खरीद दी, अब 2 महीने हो गए हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो रही है। तो सर उसी ड्रिल से वी वुड आस्क कमिश्नर ट्रांसपोर्ट टू एग्जामिन। तो जब नीचे तक जाती है चीज़ तो एमएलओ से एक जवाब आता था कि ये सिग्नेचर मिसमैच है। तो ये सिग्नेचर मिसमैच की सर बहुत बड़ी कहानी है। तो तब से सर मन में था कि इस सिग्नेचर मिसमैच को कैसे ख़त्म करेंगे। तो वी केम अप विद आइडिया कि आधार से सर जो मोबाइल लिंक है, उस आधार जो परचेज़र है और सेलर है उनका जो पर्टिकुलर्स हैं सर वो आधार से पिकअप होगा, और उस आधार से जो मोबाइल लिंक है उस पर OTP जाएगा सर, और वो जो OTP है सर वही उसका सिग्नेचर है सर। सो देयर बाय मीनिंग सर कि उसको हमारे ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज सर अगेन आई थिंक अ बिग सर्विस टू दिल्ली, जहाँ पे सर लाखों व्हीकल जो हैं वो दिल्ली में कोई खरीदता है, कोई बेचता है, किसी भी खरीदने वाले को, किसी भी बेचने वाले को सर। तो मैं आई एम सेइंग दिस विद फुल कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस कि ही डजेंट हैव टू कम टू आवर ऑफिस। वो अपने आधार बेस जो उसका मोबाइल है सर उस पर OTP के द्वारा
वो ई सिग्नेचर के द्वारा सर ही कैन कंप्लीट द एंटायर ट्रांजेक्शन सर. Sir, the second thing which we talked about, the e-learning, which I have already explained, Delhi is the first state in the entire country to issue e-learning license to an applicant wherever he is. वो अपने घर पे है, अपने ऑफिस में है, कहीं साइबर कैफे में है, तो उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से सर वो ही विल फिल इन द पर्टिकुलर्स. उसका जो आधार बेस है सर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सर इसमें जो हमने जो चेक लगाया, क्योंकि सर पूरा मुद्दा जो है ये रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ था. हम नहीं चाहते थे कि कोई फेक एप्लीकेंट जो है वो किसी और का टेस्ट दे. तो दैट हैज़ बीन चेक्ड एंड वी विल फर्दर इम्प्रूव. कि एनआईसी को हमने रिक्वेस्ट किया है कि उसकी बीच बीच में सर वीडियो क्लिपिंग्स भी एप्लीकेंट की ले लें, जस्ट टू इंश्योर कि वो एप्लीकेंट रियल एप्लीकेंट है, फेक एप्लीकेंट नहीं है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सर उसकी जो कैमरा से फ़ोटो खींचेगा एप्लीकेंट की और उसका आधार डेटाबेस में जो फोटोग्राफ है सर उससे उसको मैच करेगा. पिछले सर 8 तारीख को हमने लॉन्च किया ट्रायल, क्योंकि मैं चाह रहा था एक बार जब आपके सामने इसको हम लॉन्च करें और ये जितने भी फेसलेस सर्विसेज हैं इनको हम डेडिकेट करें पब्लिक को, तो हमारे मन में कोई शंका ना हो सर, कोई डाउट ना हो. 8 तारीख को हमने लॉन्च किया सर. यू विल बी हैप्पी टू नो कि कपल ऑफ 100 एप्लीकेंट्स हैव एक्चुअली अप्लाइड. उन्होंने अपना ई लर्निंग लाइसेंस अपने घर बैठ के सर वो इशू किया. काफ़ी सारे सर एप्लीकेंट रिजेक्ट भी हुए हैं. इसका मतलब कहीं ना कहीं सर उस मिसमैच था. सो दैट इज़ अ चेक सर वी वांटेड टू इंश्योर कि वो पूरे सिस्टम में रहे. एंड कलर ब्लाइंडनेस का सर जैसे कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने कहा, अगेन रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है सर. वी आर 100% श्योर कि वो जो कलर ब्लाइंडनेस, ऑल्दो सर वी हैव गिवन एन ऑप्शन कि अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है और वो रिजेक्ट हुआ है, ही कैन अप्रोच एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ जो डॉक्टर है, इफ़ ही सर्टिफाइज कि ये ही इज़ फिट टू ड्राइव और उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ही कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट एंड वी विल अगेन हैव अ रीलोकेट द एंटायर प्रोसेस सर. सर मूविंग ऑन टू हाइपोथिकेशन, जैसे कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि जब भी सर अगेन लाखों व्हीकल सर दिल्ली की सड़कों पे हैं और लगभग 32 लाख व्हीकल सर आज के दिन अगर हम अपना डेटा चेक करें तो 32 लाख व्हीकल जो है वो किसी ना किसी बैंक से सर उन पे लोन है. तो जब गाड़ी कोई खरीदता है सर और जब उसकी बैंक की एंट्री सर हमारे रिकॉर्ड में आती है, या जब लोन सर पूरा हो जाता है और उसकी हाइपोथिकेशन सर टर्मिनेट होती है, तो सर आई थिंक वी हैव अगेन टेकन अ स्टेप अहेड इन द राइट डायरेक्शन. Again, sir, Delhi is the first state in the entire country to have the automated addition or termination of the hypothecation. सर इसका मतलब अगर हम बिल्कुल कॉमन पार्लेंस में अगर हम समझें तो अगर किसी ने गाड़ी ली है और लोन लिया है और बैंक को, यहाँ पे सर ICICI बैंक इज हियर, मिस्टर मनोज हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ICICI बैंक, मिस्टर रमन फ्रॉम ICICI बैंक इज हियर. दे वर्कड रियली हार्ड लास्ट फ्यू डेज. तो बैंक वाले को आने की ज़रूरत है सर, ना एप्लीकेंट को आने की ज़रूरत है. द एंटायर प्रोसेस ऑटोमेटेड. थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट अदर बैंक्स, HDFC हैं सर, SBI हैं, एंड ऑल अदर बैंक्स, दैट दे ऑल्सो डू वॉट ICICI हैज़ डन. वी आर विलिंग टू पार्टनर. NIC इज़ हियर एंड आई थिंक सर वी कैन प्रिवेंट लॉट ऑफ विजिट्स, जो कि सिर्फ क्योंकि सर अगर किसी को सर टर्मिनेशन कराना है अपना हाइपोथिकेशन का, इनफैक्ट आई हैव अ व्हीकल 2 महीने पहले जिसका हाइपोथिकेशन टर्मिनेट कराना पड़ा, तो सर माय पर्सन वेंट टू द बैंक 3 टाइम्स सिर्फ वो NOC लेने के लिए. तो सर 3 चक्कर तो वहाँ लगे और फिर वो NOC लेके ही वुड कम टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में फिजिकली वो एप्लीकेशन सबमिट करता है और फिर उसके बाद वो टर्मिनेशन वो होती है सर. So it's absolutely sir hassle free. Sir, if you permit, I would like to share one more experience. सर शुरू में जब लोगों से मुलाकात की स्टार्ट की तो लोग एक चीज़ सर कहा करते थे, चीफ सेक्रेटरी इज ऑल्सो हियर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इज ऑल्सो हियर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम बिना से दलाल के नहीं होता है.
तो सब मन में बड़ी बड़ी पीड़ा हुआ करती थी कि भाई अगर हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, आज 75th ईयर सर इंडिपेंडेंस में है, अगर किसी व्यक्ति को इतनी आज़ादी नहीं कि वो किसी ऑफिस जाके अपना अधिकार समझ के वो सर बिना किसी मिडलमैन के, बिना किसी दलाल के अगर वो काम करा सके, तो सर मेरे ख्याल से हम आज़ाद नहीं है। एंड आई थिंक सर अंडर योर गाइडेंस, अंडर योर लीडरशिप, आई थिंक सर दिल्ली को हम इससे बढ़िया आज़ादी के सर इस माहौल में इससे बढ़िया सर हम गिफ्ट नहीं दे सकते थे। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट which you could have given, we could have given, the entire Delhi government could have given to Delhiites, कि जो लंबी लाइनें हैं सर, लंबी कतारें हैं, किसी मिडलमैन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जहाँ बैठे हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से आप अपना काम सर करा सकें। सर ग्रीवांस आपने हमेशा कहा है कि भाई अगर कोई भी स्कीम, कोई पॉलिसी अगर लॉन्च की है, अगर ज़मीनी हकीकत आपको नहीं पता और जिसको प्रॉब्लम हो रही है अगर उसको वो सही जगह नहीं पहुंच सकता अपनी शिकायत लेके, देन सर दैट स्कीम और पॉलिसी चाहे कितनी ही लगन से बनाई हो सर, दैट इज़ बाउंड टू फेल। एंड वी हैव टेकन स्पेशल केयर सर कि अगर किसी को भी आवश्यकता है सर, आपके मार्गदर्शन में पहली बार पूरे दिल्ली या इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में इतने बड़े स्केल पे सर 1076 डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो लॉन्च किया था, अपने आप में सर एक मिसाल हमने सबके सामने रखी थी। और उसी का सर इस्तेमाल करते हुए अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी भी एप्लीकेंट को अगर कोई भी परेशानी है, तो वो 1076 पे सर वो फ़ोन कर सकता है। दैट कॉल विल बी रिकॉर्डेड, और क्या प्रॉब्लम है वी हैव बैक टू बैक इंटीग्रेशन कि हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चैटबॉट का जो नंबर सर कमिश्नर ने बताया, दैट इज़ फुल्ली एक्टिव। हमारे जो RTOs हैं सर, वहाँ पर वो हेल्प डेस्क होगा, वहाँ वो जा सकते हैं। जो हमारे सर 3 जोनल ऑफिसेज हैं विच विल बी हेडेड बाय अ डेप्यूटी कमिश्नर। अगेन सर दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली कि डेप्यूटी कमिश्नर्स हैव बीन पोस्टेड नाउ ऑन द फील्ड एंड दे विल ओवरसी व्हाट MLOs आर डूइंग। तो हर एक से 3 डेप्यूटी कमिश्नर हैं, 3-4 MLOs के ऊपर वो पूरी निगरानी से बना के रखेंगे। तो आई थिंक वी हैव पुट इन अ वेरी रोबस्ट ग्रीवांस मैकेनिज्म सर अंडर योर लीडरशिप। सर इन द एंड आई वुड लाइक टू thank NIC, ICICI बैंक एंड सर जिसके बिना, जिसकी लगन और मेहनत के बिना सर ये काम नहीं हो सकता था सर, वो है पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सर, राइट फ्रॉम PN टू एनीबडी सर, ऑल MLOs ने बहुत मेहनत की है सर। आई एम नॉट सेइंग सर चूँकि आप यहाँ बैठे हैं और मे बी MLOs मुझे सुन रहे हैं, बट आई एम स्पीकिंग राइट फ्रॉम द हार्ट सर। ऑल MLOs हैव पुट इन देयर बेस्ट। जिन MLOs को बार बार ये शिकायत आती थी कि वो काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सर करके दिखाया कि अगर हमारी नीयत साफ़ है सर और लगन है तो हम वो चीज़ हासिल कर सकते हैं सर। ऑल MLOs हैव पुट इन वेरी बेस्ट। ऑल द स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, all DCs, all joint commissioners, everybody on the transport department sir, they have set an example even for other departments of Delhi government to follow. And I will make a special mention of Ashish Kundra sir, transport commissioner, who has actually not only just said yes we will do it, but उन्होंने actually में टीम वर्क के साथ सब पूरे कंधे से कंधा मिला के उन्होंने वाकई में बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने ये पूरी सब फेसलेस सर्विसेज दिल्ली के पब्लिक को डेडिकेट किया सर। And so this in short sir, this is the journey sir. I thank you for all the guidance and support जो आपने सर समय पे दिया, आपने जो भरोसा दिखाया सर। लास्ट में सर मैं बस ये बात कह के ख़त्म करूँगा कि जो सिंबॉलिक हम इस RTO को सर आज ताला लगाने की बात है, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि यार सरकारें ऑफिस खोलती हैं, तुम ताला लगा रहे हो। तो मैंने उनको बार बार ये कहा भी हम किसी ऑफिस पे ताला नहीं लगा रहे, हम करप्शन पे, जो लंबी कतारें हैं उन पे। एंड आई थिंक सर जो आप इस ऑफिस को ताला लगाएंगे, इसका सर मैसेज जो है वो बहुत बड़ा है सर, कि हमारे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी अधिकारी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी लंबी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको सर किसी मिडलमैन, किसी दलाल, किसी को भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार सर, दिल्ली सरकार जनता की है और उनको सर ये सर्विस जो है सर ये समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you very much, Mr. Gehlot. I'd like to now
request the Honorable Chief Minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal, to address the audience. Ladies and gentlemen, the Chief Minister. दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री कैलाश गहलोत जी, दिल्ली के मुख्य सचिव श्री विजय देव जी, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट श्री आशीष कुंद्रा जी, स्पेशल कमिश्नर्स, दिल्ली सरकार के अधिकारीगण, सभी मीडिया के साथी और सभी भाइयों बहनों, आज दिल्ली सरकार के लिए स्पेशली एक बहुत अच्छा दिन है। ये अभी हम दूसरा क्रांतिकारी कदम शुरू करने जा रहे हैं। आज सुबह सुबह 10:30 बजे हम लोगों ने दिल्ली के शिक्षा विभाग ने, अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड है एक एजुकेशन का, जिसके साथ करार करने के लिए स्कूल्स और सरकारें जो है वो बहुत ज़्यादा लालायित रहती हैं, उनके साथ हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है, जिसके बारे में मैं आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। बहुत ऐतिहासिक कदम है। और अब हम लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ये फेसलेस सर्विसेज का शुभारंभ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। एक ज़माना था जब अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लाइसेंस बनवाना होता था तो घर के अंदर बड़ी टेंशन होती थी कि अब क्या करें, किसको पकड़ें, किससे सिफारिश करवाएं, किस दलाल को पकड़ें। छुट्टी लेनी पड़ती थी, एक बार जाते थे, लाइन में लगते थे, फिर कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता था, फिर दूसरी बार लाइन में लगते थे, फिर तीसरी चौथी बार आदमी सोचता था यार किसी दलाल को ही पकड़ लो। फिर आदमी दलाल को पकड़ता था, बड़ा मुश्किल था काम करवाना। 2015 के पहले का वो सिनेरियो था। अभी जो आपने तस्वीरों में देखा कि लंबी लंबी लाइनें, खचाखच भरे हुए हैं, पसीने में लथपथ हैं। फिर 2015 में एक आम आदमी पार्टी की सरकार आई। जैसा अभी आपको पूरी यात्रा दिखाई गई, 2015 में कुछ कुछ छोटे छोटे रिफॉर्म्स किए। 2018 में एक बड़ा रिफॉर्म किया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। उसमें इतना किया कि डिपार्टमेंट तो ऐसा ही रहा, एमएलओ भी थे, आरटीओ भी थे, दफ्तर भी थे, फाइलें भी थी, सब कुछ था। पर इतना कर दिया भाई अब आपको दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, 1076 पे फोन करो, हमारा एजेंट आपके घर पे आएगा, वो आपके सारे कागज ले जाएगा, आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लेगा, आपसे फीस ले जाएगा और आरटीओ या एमएलओ के दफ्तर आके आपका काम करा के आपके घर पे आपका लाइसेंस दे जाएगा। वो भी एक बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम था जो दिल्ली के अन्य विभागों में लगभग 150 से ज्यादा सर्विसेज इस टाइम दिल्ली सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज पे चल रही हैं। आज जो किया है हम लोगों ने, ये एक तरह से, जब हम कहते हैं 21वीं सदी का भारत, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। आज जो कर रहे हैं, अब दफ्तर नहीं बचे, दफ्तर खत्म, फाइलें नहीं बची, फाइलें खत्म। अब 1076 वाला आपके घर आके आपसे कोई कागज वागज नहीं लेके जाएगा। अब आप अपने घर बैठे कंप्यूटर खोल के और आप सारे काम करा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग के सारे काम आप करा सकते हैं। कोई कागज नहीं, कोई फाइलें नहीं, कोई लाइनें नहीं। अब आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, अब आपको बिचौलिए पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कंप्यूटर पे जाके अपना काम करा सकते हैं। आप लोग अमेरिका जाते हैं, जब वापस लौट के आते हैं तो आप
वापस आके अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों को क्या कहते हैं, यार वहाँ तो सारे काम ना कंप्यूटर पे बैठ के सब घर बैठे हो जाते हैं। पता नहीं अपने भारत में ऐसा कैसे होगा। अब आप जब अमेरिका जाएं तो बोल देना हमारे भारत में भी ये शुरू हो गया सिस्टम, ये वाला चालू हो गया सिस्टम, दिल्ली में चालू हो गया और अब पूरे भारत देश में भी होगा। अब घर बैठे कंप्यूटर के ऊपर ये सारे काम हो जाया करेंगे। जैसा भी बताया गया, केवल 2 चीज़ हैं जिसके लिए आपको विभाग में आना पड़ेगा। पहली चीज़, अगर आपको ड्राइविंग टेस्ट देना है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, अप्लाई कर दो, सब कुछ कर दो, फीस भर दो, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, आप आके अपना ड्राइविंग टेस्ट वहाँ जाके दे सकते हैं। और दूसरा, अपनी गाड़ी की फिटनेस चेक करानी है तो गाड़ी लेके तो आनी पड़ेगी आपको। बस ये 2 चीज़ों के अलावा अब आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आने की ज़रूरत नहीं है। और इसी डायरेक्शन में, जैसे अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि सारे विभागों के अंदर ये एक्सरसाइज चल रही है, ट्रांसपोर्ट विभाग से शुरू हुआ ये काम, अब सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर सब कुछ ऑनलाइन कर दिया जाएगा, सब कुछ फेसलेस कर दिया जाएगा। सो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। ये तभी संभव था जब एक अच्छी नीयत वाली सरकार यहाँ बैठी है। पहले कहा करते थे, सुना करते थे, असलियत क्या थी पता नहीं, पर कहते थे कि जो वो दलाल का पैसा है ना वो ऊपर तक पहुंचता है। अब पता नहीं पहुंचता था कि नहीं पहुंचता था, लेकिन अब ऊपर तक नहीं पहुंचता है। अब ये जितने बैठे हैं ना, ये पैसे नहीं खाते, और जब ये पैसे नहीं खाते तो फिर पैसे दलालों की जरूरत ही नहीं है। हम सिस्टम ऐसा बनाना चाहते हैं कि बिना दलालों के, बिना रिश्वतखोरी के सिस्टम काम कर सके। सो दिल्ली के लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और इसी तरह से आपकी सरकार, जैसा भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, लेकिन असली आज़ादी तो तभी मिलेगी जब दलालों से आज़ादी मिलेगी, बिचौलियों से आज़ादी मिलेगी, लाइनों से आज़ादी मिलेगी, रिश्वतखोरी से आज़ादी मिलेगी। और वो सिलसिला अब शुरू हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thank you very much, Chief Minister, sir. Congratulations to the Department of Transport. May I request all the media persons to please